Hello students, be ready for science class. I am Jayesh Patel. Hope you all are well and doing your study properly. Today we are going to see third video of chapter 16, garbage in, garbage out. In this video we are going to cover topic 16.3, think and throw. So let's start third video. Chapter number 16, garbage in, garbage out. Topic number 16.3, think and throw. Page number 159. How much of garbage do you think is thrown out by each house every day? You can make an estimate by using a bucket as a measure. Use 5 to 10 liter bucket to collect the garbage from your home for a few days. In how many days does the bucket become full? You know the number of members in your family. If you find out the population of your city or town, can you now estimate the number of buckets of garbage that may be generated in a day in your city or town? सपोज हमने अपने घर में से कितना कचरा निकलता है वो मेज़र करने के लिए 5 to 10 लीटर्स की एक बकेट ले ली। अभी मान लो 10 लीटर की बकेट से और एक हफ्ते में वो पूरी भर गई। भाई आपको पता है कि आपके घर में 5 जन है, तो 5 जन ने 10 लीटर की एक बकेट एक पूरे हफ्ते में फिल कर दी, मतलब इतना कचरा आपके घर से निकला, बरोबर है। तो अभी आपको आपकी सिटीज़ का पॉपुलेशन पता है, अगर पता नहीं है तो आप गूगल से भी फाइंड आउट कर सकते हो, बरोबर है। तो आप ये सोचो कि आपकी सिटी में इतने जन रहते हैं तो वो लोग टोटल कुल मिला के कितना कचरा जनरेट करते हैं, बरोबर है। तो इस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपकी जो सिटीज़ है उसमें से कितना कचरा रोज निकल सकता है, बरोबर है। स्टूडेंट ये एस्टिमेशन है, मतलब ये अंदाज़ा है, इसमें थोड़ा कम या तो थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, पर आपको एक क्लियर आइडिया मिल सकती है, बरोबर है। मान लो कि अपनी इंडिया में टोटल 25 करोड़ स्टूडेंट्स है जो स्कूल्स और कॉलेज में जाते हैं, बरोबर। मान लो हफ्ते में सिर्फ एक पेज सब स्टूडेंट ने फाड़ दिया, एक ही पेज सब स्टूडेंट ने फाड़ के फेंक दिया, तो कितना पेज हफ्ते के अंदर वेस्ट हो गया। 25 करोड़ स्टूडेंट है तो 25 से 30 करोड़ पेज आपका वेस्ट हो गया हफ्ते में, बरोबर ना। तो इस तरह से हम लोग इसका अंदाजा निकाल सकते हैं। अब मान लो हम लोग 28 करोड़ ले लेते हैं, 28 करोड़ पेज आपका एक हफ्ते में वेस्ट होता है, और अभी हफ्ते में 7 दिन रहते हैं, तो 28 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 4 करोड़ पेज। 4 करोड़ पेज आप लोग ने फाड़ के फेंक दिए विदाउट एनी यूजिंग, बस ऐसे ही आपने एक टाइम पास करने के लिए पेज फाड़ दिया, उस पर कुछ लिखा और बाद में उसको फेंक दिया। सो दिस इज द एस्टिमेशन। द सेम वे यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ दिस वेस्ट is generated in your cities. We are generating mountains of garbage every day. Student, what is written over here? Mountains of garbage. अगर आपके पूरे शहर में जो कचरा निकलता है, अगर उसको एक ही जगह पे हम लोग ने जमा कर दिया तो इट्स लाइक अ माउंटेन, बरोबर है। इट्स गिवन इन फिगर 16.7. Let us read a story about a village where there is a less garbage and more wisdom. एक गांव की स्टोरी जहाँ पे कचरा कम निकलता था, ठीक है। नानू स्टडीज इन क्लास 6. He is very fond of making paper planes. His mother is very annoyed when he tears off sheet from a new notebook to make aeroplane. But Nanu does not care. एक नानू नाम का लड़का था, 6 स्टैंडर्ड में पढ़ता था, उसको अपनी बुक में से पेज फाड़ने की गंदी आदत थी। मम्मी को पसंद नहीं था, पर नानू को उससे कोई लेना देना नहीं था, और रोज पत्ते फाड़ के उसमें से प्लेन बना के वो उड़ाता था। Once Nanu went to
his aunt's village along with his mother. He was amazed at the variety of things his cousin Sham had made. Files from old charts, greeting cards decorated with flowers, mats from pencil shavings, mats from old clothes, basket from used old polythene bags were some of the items Nanu liked. Sham had even made a diary from invitation card. Student, just imagine a diary from an invitation card. You also can make such types of things. One morning, Nanu went looking for his grandmother, that is Nani. He saw that she was applying a thick paste on a basket. Nanu asked, Nani, what are you doing? What is this paste? This is a papier mache, a paste made of clay and paper, in which I have also mixed some rice husk, replied Nani. रानी ने बताया वो कुछ पेपियर माचे करके कोई हस्क है, कुछ पेस्ट है जो क्ले और पेपर को मिक्स करके बनाया है, और उसके अंदर नानी ने राइस के हस्क मतलब भूसा भी मिलाया हुआ है. But why are you putting it on the basket? Asked Nanu. To make it stronger, said Nani, and added, Would you like to learn this from me? नानी ने बोला, इससे उसको मजबूती मिलती है. तुझे मुझसे सीखना है? ऐसा नानी ने नानू को पूछा. नानू वॉज नॉट वेरी कीन एंड ran outside to play. नानू को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो फिर वो वहां से भाग के बाहर खेलने चला गया. He was only interested in tearing up papers to make up planes. उसको बस एक ही चीज में इंटरेस्ट था, नोटबुक में से पेज फाड़ो और उसके प्लेन बना के उड़ाओ. In fact, he also started tearing up papers from Sham's files. देखो, है ना, तो अभी उसने शाम की फाइल में से भी पेपर फाड़ने शुरू कर दिए. Shyam collected all the pieces of paper Nanu had used. Wondering what to do about him, he just did not listen to anyone. क्या हुआ अभी? श्याम कलेक्ट ऑल द पीस ऑफ पेपर्स नानू हैड यूज्ड. नानू ने जो भी पेपर यूज किए थे श्याम ने सबको कलेक्ट कर लिए. वंडरिंग व्हाट टू डू अबाउट हिम. अभी श्याम को भी सरप्राइज होने लगी, भाभी नानू का करने का क्या है. He just did not listen to anyone. नानू किसी की भी बात नहीं सुनता था. श्याम की बात नहीं सुनता था, नानी की बात नहीं सुनता था, और खुद की मम्मी की भी बात वो नहीं सुनता था. It was Nanu's birthday in a few days. श्याम planned to invite Nanu's friends. नानू की बर्थडे आ रही थी कुछ थोड़ी दिनों में, तो श्याम ने उसके फ्रेंड को बुलवाने का एक प्लान बना लिया. नानू took out money from his mud pot and went to the market. नानू ने अपने एक छोटे से गुल्लक में से पैसे निकाले और मार्केट में चला गया. He bought some paper hats for his friends. He asked the shopkeeper for a polythene bag to keep the hats, who gave him a paper bag instead of polythene. वो अपने फ्रेंड के लिए उसने सब पेपर की कैप खरीदी, और वो रखने के लिए उसने दुकान वाले से बोला कि मुझे एक प्लास्टिक की बैग दे दो, पर दुकानदार ने उसको प्लास्टिक की बैग के बजाय एक कागज से बनी हुई बैग दे दी. नानू ऑल्सो बॉट मेनी अदर आइटम्स लाइक बिस्किट्स एंड टॉफीज. ही फाउंड इट डिफिकल्ट टू कैरी ऑल दिस थिंग्स एज नो शॉपकीपर वॉज रेडी टू गिव अ पॉलिथीन बैग. नानू ने दूसरी सारी भी चीज़ें ले ली थी, जैसे बिस्किट्स है, टॉफीज है, पर उसे एक दिक्कत हो गई कि कोई भी दुकान वाले ने उसे प्लास्टिक की बैग नहीं दी, सबने उसे मना कर दिया. फिर लोग ऐसे कैसे करके नानू अपने घर पे पहुंच गया. श्याम हैड टोल्ड हिम टू कैरी अ क्लॉथ बैग विथ हिम एंड ही वॉज सॉरी ही डिड नॉट लिसन टू हिम. अभी हमें सबको पता है कि नानू अपनी नानी के वहाँ पे घूमने आया था, तो श्याम तो वहीं पे रहता, तो श्याम को ये सब चीज़ों का पता था. तो उन्होंने नानू से कहा था कि भाई तू एक कपड़े की बैग लेके जा, थैली लेके जा सब चीज़ लाने के लिए, पर नानू ने उसकी बात नहीं सुनी थी. Somehow he managed to reach home with all his purchases.
कैसे भी करके वो अपने सामान के साथ में घर पे पहुंच गया। नानू's friend enjoyed the feast on his birthday and played many games. नानू के फ्रेंड लोग भी खुश हो गए क्योंकि उन्होंने एंजॉय वहाँ पे बहुत किया और बहुत सारी गेम भी वो लोग ने खेल ली वहाँ पे। All his friends wore the shiny paper hats नानू had bought. नानू ने सब पेपर हेड लाई थी, वो सब उसके फ्रेंड ने पहन पहन रखी थी। श्याम हैड मेड ब्यूटीफुल पेपियर माचे मास्क फॉर नानूज फ्रेंड। श्याम ने वो पेपियर माचे मास्क बना के रखे थे नानूज के फ्रेंड के लिए। ही हैड अ स्पेशल गिफ्ट फॉर नानू एज वेल, और नानू के लिए भी एक खास गिफ्ट थी उसके पास। अ फोटो फ्रेम एंड अ ग्रीटिंग कार्ड मेड फ्रॉम द पेस्ट ऑफ ऑल द पीस ऑफ पेपर्स नानू हैड थ्रोन अवे। देखो, नानू ने जो भी सब पेपर फाड़ फाड़ के फेंक दिए थे वो श्याम ने इकट्ठा कर लिए थे, और उसके पेस्ट में से उसने नानू के लिए ग्रीटिंग कार्ड्स और एक फोटो फ्रेम बना ली। ऑल हिज फ्रेंड्स वेंट होम विद देयर मास्क। नानू वॉज टू एक्साइटेड टू फिनिश हिज मील एंड लुक एट हिज गिफ्ट। सब फ्रेंड हंसी खुशी अपने घर पे चले गए। नानू ने भी फटाफट खाना खा लिया, बरोबर है, और वो अपनी गिफ्ट देखनी उसे बहुत इच्छा थी, अपनी गिफ्ट देखने के लिए उसे बहुत इच्छा थी। नानू रिटर्न होम आफ्टर हिज हॉलीडेज वेर ओवर। हॉलीडे खत्म हो गई तो नानू अपने घर पे फिर से चला गया। हाउ डिफरेंट हिज टाउन वॉज फ्रॉम श्याम्स विलेज। नानू को पता चला कि उसका गांव श्याम के गांव से कितना अलग है। देर वेर नो रैक पिकर्स इन द विलेज। रैक पिकर्स का मतलब क्या है? वो कचरा उठाने वाले, आपने देखा रहेगा, बहुत बहुत बड़ा झोला लेके कोई लड़का या तो लड़की आ जाती है, और वहाँ पे जो हम लोग ने प्लास्टिक के बोतल से और दूसरे जो चीज़ है वो लोग वो उठा के लेके जाते हैं। दैट इज नोन एज रैक पिकर्स इन द विलेज एज इट वॉज नीट एंड क्लीन। शाम के गांव में ऐसा कुछ भी नहीं था, रैक पिकर्स वाला आते नहीं थे क्योंकि उसका गांव नीट एंड क्लीन था। बट नाउ ही स्टॉप मेकिंग फेसिस व्हेन ही सॉ द रैक पिकिंग चिल्ड्रन नियर हिज हाउस। पर अभी उसकी एक बात तो समझ में आ गई, उसके घर के आजू बाजू में जो रैक पिकर्स करने वाले बच्चे लोग दिखते थे, अब ये उनके सामने चिढ़ता और अपना मुंह नहीं बनाता था। यू माइट हैव सीन सम चिल्ड्रन सॉर्टिंग द गार्बेज नियर योर हाउस और एट अदर प्लेसेस। अपने ऐसे भी बच्चे देखे रहेंगे ना अपने घर के आजू बाजू में, जो कचरे को अलग अलग करते हैं। ऑब्जर्व द चिल्ड्रन एट वर्क एंड फाइंड आउट हाउ दे सेपरेट यूजफुल मटेरियल फ्रॉम द गार्बेज। स्टूडेंट्स, प्लीज डू दिस बाय योर सेल्फ। ऑब्जर्व द चिल्ड्रन एट वर्क। जो बच्चे इस तरह से काम करते हैं उनको देखिए, और वो सब चीज़ें किस तरह से अलग करते हैं उसकी जानकारी भी आप हासिल कीजिए। दे आर एक्चुअली हेल्पिंग अस। ये जो बच्चे लोग हैं जो रैक पिकर से जो कचरा साफ करते हैं, या तो हम उसे बोल सकते हैं सफाई कर्मचारी, वो अब हमारे लिए भी बहुत अच्छा काम करते हैं, वो हमें बहुत सारी हेल्प करते हैं। क्यों हम उनकी कैसे हमें हेल्प मिलती है? आपके दिमाग में शायद एक क्वेश्चन आया रहेगा। तो सीधी सी बात है, वो बच्चे लोग सबसे पहले स्कूल जाते नहीं है, कोई काम नहीं करते, यही उनका काम है। सब जगह से कचरा उठा लो और फिर कोई बड़ी दुकान में जाके बेच के आ जाओ, बरोबर है। तो इस तरह से वो लोग कचरा उठा के अपने आजू बाजू की जगह को क्लीन रखते हैं, जिससे अपनी आजू बाजू की जगह गंदी नहीं दिखती है ना। हुई ना हमें हेल्प। अगर ये सब हमें अपने हाथ से करना पड़े तो। नाउ टॉक टू वन सच चाइल्ड एंड फाइंड आउट। ऐसे कोई बच्चे से बात कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए। व्हाट डू दे डू विद द रबिश दे कलेक्ट, वेयर डू दे टेक इट। वो जो कचरा कलेक्ट करते हैं उसे उसका वो क्या करते हैं, उसे कहाँ लेके जाते हैं। डज ही और शी गो टू स्कूल, वॉट अबाउट हीज हर फ्रेंड्स। क्या वो स्कूल में जाते हैं, उनके फ्रेंड्स है या नहीं है। इफ दे डू नॉट गो टू स्कूल, फाइंड आउट द पॉसिबल रीजन्स। अगर ये रैक पिकर से जो सफाई करते हैं अगर वो स्कूल में नहीं गए थे या तो नहीं जा रहे, तो उसका पॉसिबल कारण क्या है, क्यों नहीं गए थे वो आपको ढूंढना है। कैन यू हेल्प दिस चाइल्ड टू रीड एंड राइट। मान लो कि कोई रैक पिकर को कुछ पढ़ना लिखना ही नहीं आता है,
पर उसकी बहुत सारी इच्छा है पढ़ाई करने की, तो क्या आप उनको पढ़ना सिखा सकते हैं? Have you ever helped at home to sell old newspapers, glass and metal things, plastic bags and your old notebooks to a garbage dealer? Hmm? Have you ever helped at home to sell old newspaper? कभी आपने घर पे ये सब चीज़ों करने के लिए, काम करने के लिए मदद की है? जैसे कि जूने पेपर्स को बेच देना, ग्लास एंड मेटल थिंग्स, ग्लास और कांच की जो चीज़ें हैं उसको अलग अलग रखनी है, प्लास्टिक बैग्स एंड योर ओल्ड नोटबुक टू अ गार्बेज डीलर्स, कुछ प्लास्टिक की बैग्स थी और आपके भी जो भी सब नोटबुक थे वो भी एक गार्बेज डीलर को हमें देने थे. टॉक टू हिम एंड फाइंड आउट व्हाट ही डज विथ ऑल द गार्बेज. कोई लड़के को मिलिए और उनको पूछिए कि आप ये गार्बेज का क्या करने वाले हैं. वुड यू लाइक टू मेक पेपर फ्रॉम ओल्ड एंड डिस्कार्डेड पेपर लाइक श्याम? लेट अस लर्न टू डू दिस. क्या बताएं यहाँ पे? वुड यू लाइक टू मेक पेपर फ्रॉम ओल्ड एंड डिस्कार्डेड पेपर लाइक श्याम. श्याम ने जो पेपर बना के सब छोड़ दिए थे, फेंक दिए थे, उस तरह से आप कर सकते हो. वुड यू लाइक टू मेक अ पेपर फ्रॉम ओल्ड एंड डिस्कार्डेड पेपर लाइक श्याम. श्याम ने जो जूने पेपर में से फिर से नए पेपर बनाए, तो ऐसा कुछ किया, तो आप ये सब चीज़ें कर सकते हो. यस स्टूडेंट. So this is the end of this video. In next video, we will see the topic number 16.4, recycling of paper. Okay? Till then, bye bye.